So today we'll do few questions of greatest integer again, right? But now this will be the little bit higher level, right? So everyone feel free to ask, feel free to discuss, right? Maybe something good we'll get from this. 3 by x is in the greatest integer function plus 4 by x. If you all remember, last we were doing this only. We were solving the equation in terms of x and all, right? So 3 by x is the greatest integer plus 4 by x is the greatest integer is equal to 5, right? Solve for x, right? What could be the values of x possible in this case that we have to see, right? So 3 by x is in the greatest integer plus 4 by x in the greatest integer is equal to 5. Very interesting question. Simple but effective one. Sir, I had a doubt. Yes, beta. So you had sent the purple comet paper. अरे शांति रखो। Yes, 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 Abhinav. तो आपने पर्पल कॉमेट का पेपर भेजा था, वो मेरा हो गया, तो मैं आपको आज भेज दूंगा। श्योर बेटा, सब लोग ये करके रखो। मेरी कोशिश रहेगी संडे को हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सो नाउ अभिनव बेटा, आई हैव स्टार्टेड दिस ओनली ना, व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट ना, 3 by x is the greatest integer plus 4 by x is in the greatest integer equals to 5. Now you have to find the values of x or the range of x, what you'll get. Arav. Yes, sir. Yes, to understand question, beta. Om, Yes, Dhaval, sir. yeah, Aryan, please everyone switch on your cameras. And bit aggressive. We have to get the answer, right? We know how to solve the greatest integer. All like in the last lectures, we were doing that only. Careful. सर एक्स की रेंज आएगी ना। Range आएगी बेटा. Suraj, camera on beta. Good afternoon, sir. Good afternoon beta. Aryan, Om, Dhaval, Diya, please switch on the camera, everyone. Should I start? नहीं, अनुष्का तो लिख रही है आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. ओह, not only the integral value, beta, right? Maybe the you'll get the range, right? You'll get the range key exactly the values. Vijay, not bad. ये आपका पहला क्वेश्चन है। This is the first one. ओके सर। इसके बीच में ही आ रहा मतलब लाइक But ये तुमने जो वर्क किया है ना विजय, आज ये सॉरी बट बहुत मेरे को इंट्यूटिव तरीके से लग रहा है. दिस इज द हिट एंड ट्रायल यू हैव डन. सॉरी बट ये कुछ आपने ट्राई किया एंड नाउ यू आर गेटिंग कि अच्छा लग रहा है ऐसा हो जाएगा, बट मे बी पॉसिबल कि अदर देन दिस यू विल गेट सम वैल्यूज, राइट? So, should I start? सर 2 मिनट। Okay, okay.
पर अब करेक्ट है क्या? Wow. Simply I can say wow. Very good. अनुष्का, मैं अलग से पेपर्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. लाइक एवरी वीक वी हैव टू गो फॉर IUQM टाइप पेपर्स ना. तेरे बोर्ड्स होंगे या जो भी है, बट यू हैव टू अरेंज ना. कहना टाइम निकालना है, दैट यू हैव टू डू. राइट. यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा. राइट. किसी हाल में रिजल्ट चाहिए इस बार ना. यस सर. शुड आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करूं अभी नाउ? डन बेटा. आरव, सर 1 मिनट. Arav, are you getting कि from where I have to start? यस सर, वैल्यूज 1 और 2 के बीच में है. Oh, wow, very good, very good. But more precisely, where it will like break this thing. Raghav, this is the हाँ first. सर वहाँ नहीं क्रैक हो रहा, Good इसके बीच afternoon, में sir. क्या होगा. So go with the like piece. Go with piecewise. Go with piecewise. कि like कहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं. वी कांट लाइक से एवरी टाइम कि कहाँ तक वैल्यूज जाएंगे. तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो मैं पीस वाइज वर्क करना पसंद करूँ. कि फर्स्ट दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2. राइट. ये नंबर्स होने पर दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या पॉसिबल है. चलो लेट्स सी. आओ साथ में करते सी. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस. राइट. फर्स्ट थिंग श्रेयज, ध्यान देना बेटा. राइट. What I'm saying, x less than 0. First, if I'm saying x is less than 0, see, if x is negative, so like greatest integer of 3 by x will be negative, and greatest integer of 4 by x is again negative. Both are negative. Negative is equal to positive 5, not possible. Right. Discard this value. Everyone is okay with this. Right. Second, means 100% we are sure this value must be positive. And the sum of this number will be 5. Which number is greater? This is A, this is B. Which one is greater? A or B? B. B, obviously. So I can say if 3 by x, right, is in the greatest integer, let this is 0, and the second must be 4 by x in the greatest integer must be 5. Are you getting this? Right? नहीं. या थर्ड केस मेरे पास हो सकते थे. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 by x is equal to 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4. क्योंकि दोनों तो इंटीजर्स हैं, तो नंबर तो इंटीजर ही मेरे को आने हैं, तो दिस विल बी 4. एंड द फोर्थ वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2 एंड दिस विल बी 3. ये 3 केस ही हैं मेरे पास जो मेरे आंसर्स को डिसाइड कर सकते हैं. इज दिस ओके एवरीवन? Prasam, just I have started the question, Namita. Right? Ujjan, is this okay? Yes, sir. अगर मेरे को दोनों के सम 5 आने हैं, so this must be 0, this must be 5. Second is this must be 1, this must be 4, then 2 and 3. क्योंकि always अभी तुरंत बात हुई A and B में which one is greater, तो B will be greater than A. Right? So this number will be always greater. So मैंने कहा यही 3 केसेस मेरे पास हैं. But अब 3 केस में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहां पर लिखा क्या है? एंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड? एंड का क्या मतलब? सर ये भी होना चाहिए और वो भी, दोनों सेटिस्फाई आंसर. दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने चाहिए. अब अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर पाता हूं, जो भी केसेस मेरे पास गिवन है, दैट मस्ट बी द आंसर. चलो एक एक करके फिर सॉल्विंग पे चलते हैं. ओके एवरीवन, यहां तक एक बार चेक कर लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क. नेगेटिव को हमने डिस्कार्ड कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द पॉजिटिव वन. पॉजिटिव के लिए हमने 3 केसेस लिए हैं जिसको अभी हम लोग हैंडल करने जा रहे हैं. राइट. ये 1 by 1 नाउ विल गो फॉर. राइट. Right. 1 by 1 will go for this. Right. See. Now the second one. What is this? 3 by x is 0. So we know that this belongs to 0 to 1. And the same time, this is 5, means this is 5 to 6.
right? From this, I can say x greater than 3. From this, I can say x less than 4 by 5 and x greater than 4 by 6, right? यहां से मैं x की बात कर रहा हूं तो like x is less than of 4 by 5 and as well as x greater than 2 by 3 means for this x lies between 2 by 3 to 4 by 5 but x greater than 3. क्या दोनों मिलाने के बाद मेरे को कोई सॉल्यूशन ये वाले और this one, are we getting any solution on this? No, sir. No. तो यहां मैं बोल दिया कि फर्स्ट वाले से I'm getting no solution, right? So cross this. Go for the second one. यहां के लिए थर्ड होगा वो, right? 3 by x 1 to 2 and same time 4 by x, right? The second number 4 to 5. Again, see x less than equals to 3 and x greater than 3 by 2. पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, राइट? x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 4 by 5. यहां से आ गई x की वैल्यू 4 by 5 to 1. यहां से x की वैल्यू आ गई 3 by 2 to 3. क्या ये दो जो मेरे पास निकल के आए हैं इनमें कहीं कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो मेरे को इंप्रेस कर पाए? No, sir. अगेन आई एम नॉट गेटिंग, राइट? यहां पर भी मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिले. नाउ द लास्ट केस. चलो इसे फोर्थ वन क्या रखा था हमने? 3 by x ग्रेटेस्ट इंजर की वैल्यू 2 थी एंड 4 by x ग्रेटेस्ट इंजर की वैल्यू 3 थी. 3 plus 2 will be 5, right? 3 by x lies between 2 to 3. 4 by x lies between 3 to 4. From this, x less than equal 3 by 2 and x greater than 1 means 1 to 3 by 2. What I am getting from this? For second one, x less than equal to 4 by 3 and x greater than 1, right? So this is 1 to 4 by 3. What do you think? Anything matching in this? Yes, sir. 1, 2, 3 by 2. Very good. So our answer is x. This is the sign of belongs to, right? Starting from 1 going to 4 by 3. Is this okay, everyone? Anushka, very good. And Aryan, not bad. Vijay, not bad. But now you understand now what I was saying. हाँ, वो तेरा इंट्यूटिव था, नहीं? सर थोड़ा सॉल्व किया फिर मतलब लीन उसके तरफ हो रहा था तो सोचा भाई. नॉट बैड. ट्राई तो करनी है अपने को. प्लीज प्लीज नोट डाउन. मैं लास्ट वाले पर ही आपको दे रहा हूं, लाइक दिस यू हैव टू नोट डाउन. सर ऊपर कर सकते हो क्या? यस बेटा, दिस वन. यस सर. Sir, why didn't we consider the first term to be 3 and the second term to be 2? Which one will be greater, 3 by x or 4 by x? Sorry. अमोक, आर्यन, धवल, दिया. Okay, everyone. तो मेरे को एक डाउट है. हाँ बेटा. Yes. सर आपने जब पॉसिबिलिटीज ली थी 3/x और 4/x की वैल्यूज की, तो 3/x 3 हो सकता है, 4/x भी 2 हो सकता है, तो आपने वैसे मतलब रिवर्स तो नहीं किया? You'll see ना 3 by x and 4 by x कौन से नंबर बड़े होंगे? तो कैसे Taking समझ the गया? x is positive number, अगर x पॉजिटिव मैं ले रहा हूँ कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए, यस सर, समझ गया सर. राइट? अमोक, क्लियर? Yes, sir. Okay. This. Yes, sir.
Okay, everyone, done? Abhinav, noted beta? Shreyas? See. The next on this only, right? Be careful. Find all values of x such that greatest integer of x minus half into greatest integer of x plus half is prime, right? This belongs to the set x1, x2, union x3, मतलब आंसर किस फॉर्म में आएगा, दैट आई एम सेइंग, राइट? फाइंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर. फाइंड. ये ग्रेटेस्ट दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर प्राइम है क्या कि मतलब दोनों का दोनों? प्रोडक्ट प्राइम है बेटा. ओके सर. दोनों का प्रोडक्ट इज प्राइम. सर x+1/2 के वहाँ पे ब्रैकेट नहीं है या फिर है? दोनों में ब्रैकेट है बेटा, दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही है. दिस. ओके सर. बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव क्वेश्चन, सो केयरफुल. Sir, X belongs to this set, right? Yes. The values that satisfying belongs to these values. Then we have to find all the possible values. Very good. Very good. Very good, Anushka. एक बार चेक कर लेना अपने कैलकुलेशन, आप लिख के भेज दो मेरे को. x1, x2, x3, x4 क्या क्या आया है वो लिख के भेज दो. वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड. गुड गोइंग. थॉट प्रोसेस सही है बेटा. गो अहेड. सी मैं हिंट दूं, अभिजीत, मैं हिंट दूं कुछ बेटा, कुछ हिंट दूं. वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा.
सर इज इट कमिंग नाउ? हाँ, पहले वाले का हो गया। पहले वाले का x माइनस हाफ का जी है। वेरी 3 गुड, बाई टू से 5/2 रेंज आ रहा है। गो अहेड, वेरी गुड, गुड गोइंग। हाँ, सेकेंड वाला भी कर। ओनली यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस ना, बहुत बेसिक से कुछ सॉल्व होने हैं। सर एक्स इंटीजर है क्या? मतलब इंटीजर है ना एक्स? नहीं, नॉट नेसेसरी। एक्स तो इंटीजर नहीं होगा बेटा, इंटीजर होने पर तो हमेशा पॉसिबल ही नहीं होगा। पर बहुत ही कम केसेस होंगे जिसमें ये पॉसिबल होगा। मैं स्टार्ट ले लूं? जीरो नहीं, आई गेस वो पहले जो बताया था ना बेटा आपने, वो सही था। जो अभी निकाला उसको एक बार चेक करो, शायद उसमें कहीं कुछ मिस्टेक्स आ रहे होंगे। दैट वाज मतलब पूरा करेक्ट था, उसमें कहीं दिक्कत नहीं थी। चलो देखो 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 देखो, पेशेंस 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 एंड कैलकुलेशन, राइट। आप में से जितने लोग हो सब आराम से निकाल सकते हो। व्हाट इज गिवन? ये प्राइम होना चाहिए, राइट। तो दोनों नंबर जो मेरे पास गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट प्राइम होने चाहिए, राइट। दो नंबर का प्रोडक्ट प्राइम हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, दो नंबर के प्रोडक्ट प्राइम हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल केवल एक जगह पर हो सकते हैं, जब इन दोनों में से एक नंबर मेरा वन हो जाए। सही है? ओके, यस राइट। सर। मतलब इसे मैंने फर्स्ट केस में ले लिया, लेट दिस इज इक्वल टू टू। मैंने इसे टू अज्यूम कर लिया, केस फर्स्ट। टू होने का मतलब है दिस इज वन नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज वन एंड दिस इज टू, देन ओनली आई कैन से दिस इज वन इंटू टू, राइट। नाउ आई कैन से x माइनस हाफ की जो वैल्यू है ये वन से टू के बीच में होगी, एंड x प्लस हाफ की जो वैल्यू है ये टू से थ्री के बीच में, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी वैल्यूज है वो तो दो इंटीजर के बीच के रेंज लेती है। लास्ट हम लोगों ने दो लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ा है इन चीज को, राइट। So now I can say the x belongs to 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, and this is 2 plus 1 by 2. For this, x is again 2 minus, that's 3 by 2, and 3 minus 1 by 2. यहां से x मेरे पास आ गई 3 by 2 to 5 by 2, यहां से x मेरी आ गई 3 by 2 to 5 by 2। तो दोनों में मेरे को x तो मैच कर रहा है, x के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 by 2 to 5 by 2। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। कितने लोगों का आ गया? राइट डाउन यस इन चैट। अमोक, आया ना बेटा? सर भेज भी दिया था पहले। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आरव, ओके, यस सर। ओके। नाउ but second case, when I'm taking this, right, it may be possible in the second case, right, the product of this will be 2. This could be done if this is minus 2 and this is minus 1. Is this okay? But like this is the lower one ना, तो इससे minus 2 होना चाहिए और ये greater है उससे, तो ये minus 1 होगा, right? Means x minus 2, this minus 2, if this belongs to minus 2, means this is minus 2 to minus 1,
and this x plus half belongs to -1 to 0. Is this okay? यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को, मे बी, कि इफ नंबर इज -2, तो ये थोड़ा सा इसके अंडरस्टैंडिंग लाना, number is between -2 to -1 and it's going to its left integer, and left integer is -2, right? So x belongs to 0 to 1 in this case, right? And for this, x belongs to -3/2 to -half, right? सर आपने वो -2 < x -2 कैसे लिखा? तो हाफ, एक मिनट, हाफ कर दो, ये हाफ, ठीक है। so -2 half, this will be x -3/2, and from this will be -half. Again, same, reading same. Means second value is coming from -2 to -half, right? This is closed and this is open, right? And first वाली value जो मेरे पास आई थी, वो आई थी 3/2 to 5/2. Something like this. ये मेरा आंसर है. प्लीज सी दिस. क्या फर्स्ट या सेकंड कौन सा आपको लगता है मुझे फिर से समझाने की जरूरत है? प्लीज आस्क. सर हम कोई और दूसरा प्राइम नहीं ले सकते क्या 2 के अलावा? बताओ बेटा, कौन सा लूं? सर 5। 5. 5, दो नंबर का प्रोडक्ट 5 कैसे हो सकता है? एक 5 हो जाए और दूसरा 1 हो जाए, हाँ सर। राइट? रेंज देखो दोनों नंबर का, x -half x + half है, राइट? तो एक नंबर जा रहा होगा -1 से 1 के बीच में, एंड सेकंड नंबर इज गोइंग टू 4.5 to 6 के बीच में. कभी दोनों मैच ही नहीं करेंगे, हाँ सर। नहीं? तो दिस इज द केस जहां पर दोनों मैच कर सकते हैं. दिस इज द लोएस्ट टर्म व्हाट विल गेट, राइट? ये फर्स्ट के लिए मैंने नोट डाउन, प्लीज. श्रेयज ओके, जील ओके, Yes, sir. दिया, उजान, उजान देखना तुमने कुछ लेक्चर्स का ये होगा बेटा, तो आराम से ना, कोई हड़बड़ा नहीं, जो भी पूछना है धीरे से टाइप कर लेगा अगर दिक्कत हो तो. हाँ सर, ठीक है। धवल ओके, यस ओके. This is the second, right? So only the calculation part when we have to be careful exactly how this is going, right? See the next one. Now this is the calculation. Only the calculation is required for next one. So please careful. 18/35 plus 18 into 2/35 plus 18 into 3/35 is going from 18 into 34/35. Find value of this. Sure. 18, this is not point, it's a multiplication. Right? 18/35, right? The number is going 18 into 2/35, 18 into 3/35, up to 18 into 34/35. Right? Then we have to find this, like
अमोल, क्या लग रहा? आ रहा है कुछ बेटा? सर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या कि अगर पूरा ए बाई बी पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो तो फिर ए ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई बी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है? एकदम नहीं। तेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे कुछ इंटेलिजेंट तरीके से। वेरी गुड श्रेय, बहुत अच्छे बेटा। मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट से 2 मिनट। ओके, डन सर। वेरी गुड। थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक करो राघव, नॉट बैड, थोड़ा सा शायद कुछ कैलकुलेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, ध्यान देना। द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस ना 100% यू विल फील कि ये तो सिंपल है। दिस वन इज सिंपल, दिस इज ओनली द कैलकुलेशन पार्ट, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी सर। वेरी गुड, वाओ, अब ठीक है सर। वेरी गुड। भूल गया था वो। एक विजय, अनुष्का, एक बार चेक करो बेटा, शायद थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर 2 मिनट सर, गलती समझ आ गई। कसम, वाह, वेरी गुड। वापस भेजा। नॉट बैड। ओके, लेट्स सी। So this is given 18 1 by 35 and so on, right? And last one is 18 34 by 35. Can I write this one, the last one, can I write this one as 18 minus 1 by, right, 34 times it's given, right? 34 times. So 18 minus 18 by 35. Isn't that correct? Can I write this one as this? सर यही करा। Arey wow, very good. Right? So this, if you will take LCM of this, so 18, 1 minus 1 by 35, and 35 is going there, so this is 34 by 35, right?
But if I'm writing this as 18 minus some fraction, right, means this number will be less than 18. Similarly, previous to this will be, this is clear or not, Yes, sir. right? Yes. And Yes, the sir. last number will be 18 minus, what is this? 18 into 34 by 35. So each and every number, if you'll see, each and every number, right, these are coming as a fraction, right? The first is 18 minus this is 17. Second number is 17, 17. Each and every numbers are 17. But how many times this is 17? How many times we are going? How many numbers are there? 34. सर पर 18 माइनस 18 इंटू 2 बाई 35 तो वो हो जाएगा ना 16, हाँ सर। क्योंकि Right? वो तो 36 बाई 35 1 हो जाएगा. तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि लाइक आई हैव टू कैलकुलेट एवरी टाइम, आई हैव टू कैलकुलेट कि विच वन विल गो लाइक ग्रेटर देन और लेस देन, राइट? उसका एक मिला था। So you understand this ना कि this number to directly this is going, but 18 by 35 is fraction. It like 18 by 35, if I'm giving 18 into 2, 36 by 35 is only 1, right? This number is going to 2, right? So every numbers are going in the different way, right? अब मेरे को क्या करना है कि लाइक जितने नंबर्स हैं, ये तो 17 वाले, ये तो इतने नंबर्स जो मेरे पास है वो तो 17 दे रहे हैं। इसके अलावे जो नंबर्स होंगे, राइट, वो तो मेरे पास 17 वाले केसेस नहीं होंगे। कैसे एडजस्ट करूं कि दोनों नंबर मेरे पास आ जाए? सबके नंबर बहुत ऊपर ऊपर चले गए हैं, जिसकी आई डोंट थिंक इसकी जरूरत रहेगी, बट फिर भी, राइट। सो फ्यू ऑफ द नंबर्स आर गोइंग 17, राइट, बट few of the numbers are going less than 17, right? कुछ नंबर जीरो भी है। कैसे हैंडल करूं कि ये लाइक जैसे फर्स्ट नंबर मेरे पास ये 0 आ रहा है, सेकंड नंबर यू विल सी तो ये 1 आएंगे, थर्ड नंबर यू विल सी 18 इंटू लाइक ऐसा कैलकुलेशन, तो दिस इज नॉट गुड, नहीं, मजा नहीं। सर मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आप कैलकुलेट जब भी करोगे तो दैट विल नॉट वर्क। क्या रखा जाए, कैसे किया जाए, क्या लगता है? देखो, सर ग्रुपिंग कर सकते हैं. यस, 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 ग्रुपिंग कर सकते। कैसे ग्रुपिंग किया जाए? वेरी गुड आइडिया, तो अच्छा है कि ग्रुपिंग किया जाए। कैसे ग्रुपिंग किया जाए? प्लस 0 को ले सकते, 16 प्लस 1 को ले सकते वैसा। 16 प्लस, मतलब जैसे एक 0 आएगा एक फ्रैक्शन, हाँ हाँ, और हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शन 17 है, हाँ हाँ, तो उन दोनों को फिर ग्रुप करके फिर 16 और 1 को ग्रुप करके 15 और 2 को। ओके। जैसे मेरे पास जो था, मैं अज्यूम करता हूँ उसका नाम एस देता हूँ, ध्यान से देखना अपना। द फर्स्ट नंबर वॉज 18 इंटू 1 बाई 35 प्लस 18 into 2 by 35 plus 18 into 3 by 35 and so on 18 into 34 by 35. This was the question, right? Now what I'm saying, just I'm writing this in a reverse way, but writing in this form. What? Greatest integer 18 minus 18 by 35 plus 18 minus 18 into 2 by 35. Are you getting this? And the last one, 18 minus 18 into 34 by 35. Are you getting this? Is this okay everyone? आराम से केवल यहां तक को रैलीज करो, यहां तक को एंजॉय करो, यहां तक को देखो अच्छे से, राइट? उसके बाद मैं आता हूं आगे के काम पे, पहले यहां तक।
But in the second step, why is it 18 minus 18 by 35? The last number is this one, na beta. Last number is this one, right? So if you'll see this one, this was 18 into 1 by 35. Can I write this number as 18 minus 18 into 34 by 35? Yes, sir. If I'll take 18 common, this will be 34, 35 minus 34, that is 1 by 35. So both the numbers will be same, right? So Okay, that's sir. like I have reversed the number and writing each and every number. Take your time. Note down and now think. Take your time. You have 2 minutes. Now think. एक और हिंट दूं आगे या ठीक है यहां तक? Add this. Now 18 minus 18 by 35 plus 18 by 35 is one of the term. Second term is 18 minus 2 by 35, and this is 2 into 18 by 35. What we can say on all this, right? Think on this. Should I say? Yes, yes, please. So the greatest integer of 2 into 18 upon 35 will remain same, so we'll get 18. Or less than 18. But sir, Less than 18 or 18. so we should get 18. Exactly. First one, beta. The first one. So for first one, 18 upon 35 is the same greatest integer as 18 upon 35 in the bracket of 18 minus 18 upon 35. So they should cancel out. Means you are saying, sir, if Because there 18 is a constant, sir. I So minus f is in the greatest integer plus greatest integer of f is there, right? Something like this, right? So what I can write in this form? What is the answer in this? First number is I minus, याद है ना लास्ट लेक्चर में भी हमने ये किया था, I minus f is in the greatest integer plus greatest integer of f. What we can write? Everyone write down. See, this is I minus 1 and this is 0. Can I say this is nothing but I minus 1? Can I say this? Is this okay? Right? What if I'm saying I1 minus f plus is in the greatest integer plus I2 plus f is in the greatest integer, where I1 plus I2 is equal to 18. What should we write this? इसे क्या लिखो? What should we write this? और I1 प्लस I2 को मैं 18 भी नहीं लिखता हूं, चलो I1 प्लस I2 को मैं I ही लिखता हूं कि एक कंसेप्ट ही मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूं. दिस विल बी I minus 1 अगेन, क्योंकि ये वाली चीज आएगी I1 minus 1 and this will be I2. तो I1 plus I2 minus 1, this will be I minus 1. What if you understand this? So if you see this, क्या मैंने ये दोनों को जब ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, क्या यही वाली पूरी की पूरी सिचुएशन आपके पास आ रही है? यस सर. ये बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, इसलिए एवरीवन रुको, सोचो, 4 बार सोचो, नहीं समझ में आए प्लीज डिस्कस. सर I1 माइनस एफ मतलब कैसे? ये मैंने कहा 18 जो था वो I1 है और ये जो माइनस हो रहे हैं वो F है, फ्रैक्शन में ही कुछ आ रहे होंगे. हाँ सर. उसी को मैं बार बार करता गया हूं.
सर तो I1 और I2 अपने डिफरेंस लगाने। इंटीजर्स है, मतलब एवरी टाइम, राइट। अब इसमें मैं देखूं तो 34 टाइम्स है, वही चीज है मेरे पास। तो 2s इजिकल टू क्या आया मेरे पास? 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1। हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 18 माइनस 1? 34 टाइम्स, Yeah. राइट। लेकिन वो तो सिर्फ इस तब काम करेगा जब फ्रैक्शन वुड बी लेस देन 1। आगे भी जाएगा तब भी वही हो जाएगा बेटा, मैं वो भी दिखाता हूँ। दिस इज 17 स्क्वायर इज 1, sorry, 289 I guess ना, समथिंग So when fraction will be more than 1 Yes, sir. will हम लोग का जो ब्रैकेट में वैल्यू है 18 माइनस 18 n अपॉन 35 वो 2 से डिक्रीज होगी, और जो उसके बगल वाला वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगा, तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम थिंग। वेरी गुड Rajit, okay na? When you will subtract, so this will be reduced down by 2, but the next term will be increased by 1. So again, you will get the 1 increment in the second one. So overall, I minus 1 you are getting in this. So beautiful question, right? The greatest. That's the reason I said कि आराम से रुक के थोड़ा सोच लो कि like how you have to apply the concept. Raghav, okay? ABJ, okay? Yes, sir. सर समझा। Amol, Aruzan, Anushka, Zeel, Shreyaj, Yes, sir. Aryan, Dia, Om, Arav. Arav, is this okay, beta? Yes, sir. Dhaval, Yes, sir. कोई कुछ पूछना चाहोगे? Anyone? नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा एक स्टेप और मैं आगे बढ़ूंगा, सो प्लीज थोड़ा ध्यान से। आर्यन प्लीज आस्क बेटा, क्लियर है? सी डन एवरीवन? सी what if, right, in the function I am giving the same question, right? In the function I'm giving you the same question, right? The function one, when we have to find the value of x in this, something like x cube minus greatest integer of x is equal to 3. Solve for x. Go for this. सर एक ही वैल्यू है इसकी। हाँ, एक ही वैल्यू आएगी। नहीं, अधिक भी हो सकती है। आई डोंट नो, मतलब चेक करने पड़ेंगे। हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं जील, एक से अधिक हो सकते हैं बेटा, चेक करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट लूं? सर 2 मिनट।
बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग, like you can start with the basic of, like when we know that the values lies between this and this, then what we can say and all, और a rough sketch ग्राफ याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ग्राफ बनाया था। अभिजीत आपके लिए बेटा यहाँ मैं थोड़ा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, दिस इज योर फर्स्ट सो यू कैन सी। उजान अब भी देखना बेटा, 0 से 1 के बीच में दिस विल बी at x is equal to 1 this will be 0, between 1 to 2 this will be this is the graph of greatest integer function, this is the graph of y is equal to some greatest integer function x, and negative में this will go something like this, means the value of x lying between -1 to 0 this will be -1, the value of x lies between -2 to -1 this will be -2 and so on. This is also called the step function, right? Stepwise we are going up, right? So this is also known as the step function. Wow, wow, Anushka, very good. But in this we need exact value, right? हमें exact value की जरूरत होगी यहाँ पे। सर मेरा x³ 4 आया तो वो भी कर सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, अरे यही तो बहुत प्यारी वाली वैल्यू होगी ये, x is equal to 4 is one of the value. तो लास्ट 2 लेक्चर जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिया था, तो ये थोड़ा अप स्केल पे जाने वाला लेक्चर था। आई सेड कि ये थोड़ा सा आप लोग एक बार कल अगेन आई एम स्टार्टिंग बेस नंबर्स, राइट, तो जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सब तो नंबर सिस्टम में होते ही हैं, उसके अलावा लाइक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन उस पर वर्क करना है। सर हम इसके पिछले वाला क्वेश्चन पैटर्न से भी तो कर सकते थे ना? कैसा पैटर्न बेटा? सर इसमें मुझे पहला मिल रहा था कि पहले में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, दूसरे में 1 हो जाएगा, तीसरे में 1 हो जाएगा। बट आगे वाले में मैं कैसे बताऊंगा कि दो सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहा है? सर मैंने 8 तक चेक किया उसको, पर सर से 289 ही आ रहा है। कैस थोड़ा क्या हुआ, 0 1 आ गया, फिर उसके बाद क्या किया थोड़ा और बताओ। 1 पे 0 उसके बाद 1 1 उसके बाद 2 2 उसके बाद 3 3 आ रहा है, ऐसा मैंने 8 तक चेक किया, मतलब 18 into 8 तक ऐसा। मैंने भी वैसे ही किया था। 18 8 तक, तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 1 2 बार, 2 2 2 बार, 3 3 3 2 बार, एंड 17 17 2 बार, लास्ट 17 17 17 2 बार कैसा है, क्योंकि सर वो 2 से लेके 34 तक तो 33 टर्म्स ही है, तो सर वो 16 2 बार रिपीट होगा, और फिर सर एक 17 हमारे पास बच जाएगा। तो अगर हम उसको समेशन से करें तो सर 2 को बाहर लेके 16 तक n into n+1/2 कर सकते हैं, और फिर सर लास्ट में 17 ऐड कर सकते हैं। नॉट बैड, लग तो ठीक रहा है। सर उससे 289 नहीं आ रहा है, मैंने वैसे ही किया। हाँ 29 ही आएगा उससे, नॉट बैड, गुड, अच्छा अप्रोच भी है। हाँ बट थोड़ा सा बचना इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कहीं वो बिहेवियर वैसा नहीं रहा तो, बट अब जब बोल रहे तो मेरे को लग रहा नहीं बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। हाँ कि शुरुआत लास्ट में निकालने पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से है। मैं स्टार्ट करूं? वाह, वेरी गुड राघव, वन ऑफ द वैल्यू। और सोचो थोड़ा सा, अनुष्का गो फॉर द सेकंड वन ऑल्सो, गो फॉर द सेकंड वन बेटा। अभिनव, आर्यन, दिया, ओम, अमोघ,
यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। वेरी गुड। अब राजित, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे पिक किए। एक और वैल्यू आएगी बेटा नेगेटिव में, मैं हिंट दे रहा हूँ सभी को, एक वैल्यू नेगेटिव वाली भी होगी, उसको भी थोड़ा सा ट्राई करके देखो, शायद वो भी काम कर जाएगा आपके। ये पॉजिटिव वाली वैल्यू दिख रही है, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका आ चुका है। गो फॉर द नेगेटिव वन। सर एक ये आया। हाँ, क्या आया बेटा? एक आया। वाह, वेरी गुड। गो फॉर द सेकंड वन। यस सेकंड सर। आएगा, सेकंड भी आएगा। मैं स्टार्ट करूं? हो गया अटेम्प्ट सबके? सर मुझे नहीं मिल रहा, आई डोंट थिंक करेगा। नहीं करेगा? आओ देखते हैं साथ में। सी, एक रफ स्केच अगर मैं ड्रॉ करूं, ये पहले मेरे पास ग्राफ है। क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा, राइट? ऐसा कुछ जा रहे होंगे ग्राफ ना, समथिंग लाइक दिस। लग तो रहा है ऐसा कि शायद मे बी दिस विल इंटरसेक्ट एट, या तो यहाँ या यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, आई डोंट नो हो भी रहे हैं या नहीं, बट एक रफ स्केच से मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वी आर नॉट प्रिटी मच श्योर कि क्या है। मैंने कहा मीन्स ये स्टेप, पहला स्टेप सबको क्लियर है, एक ग्राफ से मैंने एक रफ स्केच लिया, आई एम नॉट नोइंग कि है भी या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, राइट? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट मीटर एक्स। नाउ अपनी कंफर्मिटी के लिए व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि x इज लाइंग बिटवीन 1 to 2, इफ द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 1 to 2, तो ऑब्वियस सी बात है x क्यूब मस्ट लाइज बिटवीन 1 to 8, and at the same time 3 plus greatest integer x lies between, right? So this is 3 and this is 1. The greatest integer of this will be 1 only, right? This value is 4 only, not lying between. This is again the 4 value, and this 4 is lying between these two value. तो मेरे को लग रहा है कि 1 to 2 के बीच में मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। कैन आई से दिस? ये स्टेटमेंट क्लियर है? इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। अब फोर के राइट हैंड साइड में। हाँ, राइट साइड नहीं आया बेटा, 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिख दिया व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 1 to 2। ठीक है। दूसरे जो प्रपोज किया था, सोच रहा था कि एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन 2 to 3, इसे भी थोड़ा सोच लेता हूं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू इस समय कहां से कहां लाई करती, राइट? 8 to 27, राइट? एंड उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या होती, 5। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, मैंने गलती से यहाँ पर ग्राफ गलत बनाया। नहीं, इससे ये पता चला मेरे को
इतना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है देखो, राइट। मतलब जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो 1 से 2 के बीच में ही मिल रहे हैं। एक तो पहला ये रहा, चलो देख लेते हैं। मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू, सर मुझे ट्रायल एंड एरर से एक सोल्यूशन आया। हाँ बेटा सबके वही रहेंगे, ट्रायल एरर ही है ये, बट इफेक्टिव ट्रायल एंड एरर इसको बोलते हैं, राइट। एक्स लाइंग बिटवीन 1 to 2, तो एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2 के लिए मुझे अगर सॉल्व करना है तो व्हाट आई एम प्रपोजिंग कि ठीक है एक्स की वैल्यू 1 to 2 लाई कर रही है, तो एक्स क्यूब minus greatest integer of this is 1 is equal to 3, so x cube is equal to 4. The value of x is 4 to the power 1 by 3. How many of you are getting this? Write down yes in chat. Arey wow, wow, very good, very good, very good, wow, very good everyone, wow. सर नेगेटिव वाला नहीं आया। हाँ, नेगेटिव वाला देखता हूँ आएगा भी कि नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा बेटा ना। नाउ ये इज दिस ओके एवरीवन? मेरे को कहीं पर समझाने की जरूरत है क्या? धवल, अभिनव, ओम? फिर ऊपर कर सकते हो क्या? यस बेटा, देखो टेक योर टाइम, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से इनको हम लोग कम से कम 2-3 बार करने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, राइट। ओके, यस सर। आरव, आर्यन, Yes, sir, writing right now. okay, okay. Now we have to find the value in the negative one, right? So if x is negative, right, x cube minus greatest integer x is equal to 3, and x is negative. If you are saying obviously -1 से 0 में, तो ये like this will be -1, right? And then -2. चलो देख ही लेता हूँ एक बार, थोड़ा आइडिया तो लग जाए मुझे ना। x is lying between -1 to 0, right? So this x cube will lies between -1 to 0 only, right? But Yes. right side, so x cube is equal to 3 plus greatest integer of x, and this value will be 2 only, and but this value lying between -1 to 0, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई नहीं, मतलब 3 के तो नीचे ही मेरे को जाना चाहिए, राइट। इज दिस ओके? क्योंकि उसे नेगेटिव, राइट साइड को नेगेटिव तो आने दो। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, राइट। ये वैल्यू नेगेटिव कब हो रही होगी? जब x की वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, राइट, -2, -2 से, राइट सॉरी, -3 से -2 के बीच में होगा, तो ये वैल्यू उस समय 0 जा रही है, बोल सकता हूं मैं। when the value of x is lying between -3 to -2, तो obviously like this value will be going to, right, the greatest integer of this will be -3, -3 will be 0, but this is the number बहुत ही पीछे चला गया, right? But x is lying between -4 to -3, right? Then x cube is equal to -1, right? So ये कुछ नंबर मेरे पास जा रहे हैं, like this is going, एंड ये नंबर मेरे को इस तरफ ही बनते जा रहे हैं। क्या पॉसिबल होगा कभी इसको कट कर पाना? नो सर। वेरी गुड। तो ये हमने वैल्यू को डिक्रीज करने पर भी काम, ओके, समझ में आई सभी को? गुड वन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, राइट। एनीवन वांट टू आस्क, कुछ पूछना चाहोगे? तो अगर नहीं तो एक क्वेश्चन और देखें जो आप जल्दी से करके तो दिखाएं। स्टेप ग्राफ बाहर नहीं आएगा? स्टेप ग्राफ बाहर नहीं हो जाएगा? ऐसा जाएगा बेटा, यहां से -1 पर दिस वैल्यू, ये इधर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, स्टिफली नीचे चला जाएगा। -2 to -1, मैं फिर से बनाता हूँ ग्राफ में नेगेटिव के लिए।
क्योंकि स्टेप ग्राफ मैं बना रहा हूं ना, लेकिन स्टेप ग्राफ के साथ में मेरे -3 भी एड ऑन, सॉरी +3 भी एड ऑन। ये तो मैं यहाँ पर केवल स्टेप ग्राफ बना रहा हूँ, राइट। तो कहीं यहाँ पर ये कट करता, राइट, ऐसा। बट व्हाट आई एम डूइंग, मैंने पूरे ग्राफ के साथ +3 भी तो किया हुआ है, तो पूरा ग्राफ मेरा ऊपर चला गया, ये वाले ग्राफ पूरे ऊपर उठ जाएंगे, तो दैट वैल्यू विल नॉट गो इन दैट, एंड फिर ये वाले तो छोटी वैल्यूज आने, राइट। सो इफ आई एड +3, सो एवरी ग्राफ will go +3 unit. Yes, sir. Understand? So that's the ठीक है reason सर। minus वाले में तो दिख रहा है, but you have to add this also ना, so everything is going up, right? So like -3, x cube is going steeply down, okay? Fraction part of x is equal to 2/3 and greatest integer of x plus fraction part of x plus greatest integer of x plus fraction part of x is going 100 times. Fraction part, greatest integer, fraction part, greatest integer, and this value is 5. Right? Find x. श्रेय जब भी बोलेगा सर आप कुछ भी देते हो सर क्वेश्चन। मैंने तो बोल ही दिया था। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया, तो आएंगे स्टेटमेंट उसके पहले मैंने बोल दिया। मेरा मानना ये है ना बेटा, जितना परेशान होना है एग्जाम के पहले हो ले, एग्जाम में हम परेशान नहीं, बेसिक वही, राइट। तो जितना परेशानी लेना है लोग यहाँ ले। ये ऊपर में फर्स्ट वाला दिया हुआ है फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू 2/3, एंड सेकंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसके अंदर फ्रैक्शन फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट 100 टाइम्स यू आर राइटिंग दिस इज इक्वल टू 5, देन यू हैव टू फाइंड x। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है जो मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और x नेगेटिव है क्या? हो सकता है बेटा, गिवन नहीं है बट हो सकता है, पॉसिबल। सर कुछ मिला। वेरी गुड, एकदम मिलेगा, वेरी गुड, परफेक्ट। सेंड इट टू मी, लिख के भेजो, लिख के भेजो। सर हम 100 टाइम्स ईच टर्म लिख रहे हैं कि हम लोग 100 टाइम्स इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज? कंटिन्यू 100 टाइम्स, दिस इज 100 टाइम्स कंटिन्यू। स्टार्टिंग में x है उसके साथ मिला के 100 टाइम्स है क्या? हाँ, हाँ, पूरे मिला के। ओके, वेरी गुड अनुष्का। सर और वैल्यूज हो सकते हैं? हम्म, यस यस, देयर कुड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने केवल ट्रिक किया है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। केवल इतने लिख के मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अमोघ,
Very good, beta. Yes. Then you have to find, Raghav, value of x, na? क्या possible values? हाँ, good. Negative. और उसका चेक कर बेटा. सर ठीक है। Very good. Today start. अमोघ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. थोड़ा सा चेक कर, शायद. अपराजित वेरी गुड. वेरी गुड एवरीवन. एक सेकंड, 2 मिनट सर. यस. जील, उजान, आर्यन. यस बेटा. सर बहुत अजीब सा आंसर है क्या? अजीब किसको बोलते हैं वो नहीं पता मेरे को. सर फ्रैक्शन मतलब बहुत गंदा फ्रैक्शन. गंदा नहीं, गंदा नहीं, गंदा नहीं. सर हम्म. ये इन्फिनाइट तक करेंगे तो कुछ निकाल सकते हैं ना, क्योंकि फिर इन्फिनाइट तक करेंगे तो ब्रैकेट को टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरी चीज़ टी है बेसिकली 5 पुट कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि अगर इन्फिनाइटली जाता है तब भी वही जाएगा बेटा, क्योंकि इन्फिनाइट अगर जा रहा है ना तब भी मेरे तो को. फिर भी सेम ही चीज़ होगी। हाँ मतलब ग्रेटेस्ट नहीं जब तो वही टर्म आ जा रहे हैं ना मेरे को, वो कहीं डिस्टर्ब करेगा ना. यस लेट्स स्टार्ट. करूं? जितना गंदा आंसर आया था भेज दिया. अरे बाप रे, कैंसिल तो हो रहे हैं बेटा, ये कैंसिल तो करो इसको. अच्छा ओके, हाँ सर. सी. हाँ चलो. हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? प्लीज आप लोग को ये देता हूं मौका, प्लीज एक्सप्लेन. राघव, गो अहेड बेटा. तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुट करना 2/3 को। अगर कहीं बीच में से स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में 2/3 डालेंगे तो उसके बाहर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 2/3 होगा, पर वो खुद 2/3 हो जाएगा तो वो कंटिन्यू होगा, तो x प्लस 2/3 बन जाएगा ब्रैकेट में। ओके. तो स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5। ओके. ओके, नॉट बैड. अबराजीत प्लीज एक्सप्लेन बेटा व्हाट यू हैव डन. हाँ सर. सर ये 100 टाइम्स रिपीट होता है लाइक, तो इसका जब अगर ऑड टाइम पे ऑड होता तो इसका एंडिंग GIF होता, लेकिन ये इवन पे एंड हो रहा है तो इसका लास्ट सबसे अंदर वाला टर्म ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला है. तो सबसे अंदर हमें 2/3 मिलेगा. 2/3 प्लस x का GIF निकालना होगा उसके बाद, उसके बाहर. नॉट बैड. इसका GIF निकाला तो हमें मिलेगा GIF ऑफ x प्लस 1, उसका वैल्यू आएगा. वाह. मैं बताऊंगा. और उसके बाहर अगर प्लस x करके उसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 2/3. तो वो 3 टर्म्स में, हर 3 टर्म्स में रिपीट होता है वो पैटर्न. ओके. तो देन 99 तक सेम रहेगा. 99 तक उसकी वैल्यू बस 2/3 रहेगी, और फिर 2/3 प्लस x का GIF इक्वल टू 5 है, तो फिर x इक्वल टू 5 प्लस 2/3 और ये 5. नॉट बैड. यस अभिनव प्लीज.
सर मैंने क्या किया सर, मैंने नोटिस किया कि ये जो x प्लस ग्रेट मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, ये 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये पेयर एक। तो जो सबसे लास्ट वाला होगा सर, 100 x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका जब टोटल फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे तो 2/3 x का, 2/3 फ्रैक्शन पार्ट का, तो हम लोग को 4/3 मिलेगा, मतलब फ्रैक्शन पार्ट 1/3 हो गया। फिर सर जब 99th पे देखा तो ये फ्रैक्शन पार्ट 1/3 इसके साथ फ्रैक्शन पार्ट एक्स के साथ मिल जाएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स टोटल मिल जाएगा 0। तो और एक्स के अंदर जो ओरिजिनल एक्स है उसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट 2/3 है। मतलब कि हर 2 स्टेप्स के अंदर सर हम लोग का जो फ्रैक्शन पार्ट है हम लोग को रिटर्न हो जा रहा है। मतलब कि एक्स हम लोग को फाइनल इक्वेशन मिलेगा एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दैट इज 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 5। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर वन? कोई और? एनीवन? मैं बोलूं? कितना मेहनत की हो यार आप लोग, वेरी गुड। इतनी की जरूरत नहीं थी। सी, हम लोगों ने ये देखा था, अगर i प्लस एफ कोई भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर, या i1 + i2 है, तो i मैं कभी भी बाहर ले सकता हूं, राइट? सिंपली हमारे पास ये रहता, और ये फ्रैक्शन में जो मेरे पास जा रहे हैं, राइट? सो अगर मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन गिवन, तो फ्रैक्शन ऑफ दिस, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पूरे टर्म हमारे इंटीजर वाले हैं, फ्रैक्शन में ले रहा हूं, तो ये केवल इतना ही टर्म मेरा 2/3 दे रहा था। दिस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3 डायरेक्टली लिखना था आपको, बट ठीक है, चलेगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज गिवन एज 5, सो x इज इक्वल टू 5 + 2। कुछ ऐसा ये तो दिखाई दे रहा था एक, लेकिन इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होने के लिए व्हाट वी कैन से, यहां पर 5 - 2/3 भी वही वर्क करेगा, right? Then this will be cancelling out with this, right? So अगर मैं केवल प्रॉपर्टी से ये करता तो मुझे इस पूरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे को सिंपली यहाँ पर प्रॉपर्टी पे यही लगाने की कोशिश करनी थी। दिस फ्रैक्शन पार्ट इज 2/3, so complete fraction part, greatest integer fraction part, greatest integer fraction part, this complete term is coming as 2/3, and the greatest integer has to come as 5, so this could be 5 - 2/3। कुछ ऐसे ही आंसर आया क्या? यस सर। राइट? या फिर अगर आप चाहते तो आप इसका रेंज निकाल सकते थे, बट वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से वर्किंग रखी। दिस इज फ्रैक्शन, तो x + 2/3 लाइज बिटवीन 5 और 6। 5 to 6, राइट? इसके बीच में कौन सा नंबर है? दिस फ्रैक्शन इज गिविंग यू 2/3, दैट ओनली दैट यू हैव टू सी, राइट? तो आंसर हमारे ख्याल से सभी का कुछ उसी पे वर्क किया। 4 + 2 सॉरी 4 + 14/3। 40, राइट? 4 + 2/3, राइट? समथिंग लाइक दिस, राइट? तो आई होप आज के ग्रेटेस्ट इंडिया, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन के लेवल को आज थोड़ा अधिक रखा था, बट आई होप एट लास्ट आप लोग को समझ में आया हो ना। फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट बेस ऑफ द नंबर, राइट? बेस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ कुछ, राइट? बाइनरी सिस्टम क्या होता है एंड ऑल, राइट? ऑक्टल सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम, राइट? एंड दिसंबर खत्म होने को है, जनवरी स्टार्ट होगा। तो जनवरी से, जैसे मैंने आप लोग को कहा था, संडे एक फिक्स डे रहेगा जिसमें हम लोग ज्योमेट्री करेंगे, जो लॉन्ग आवर्स के लिए रहेगा। ज्योमेट्री इज मस्ट, राइट? और ज्योमेट्री को थोड़ा टाइम देने की जरूरत होती है, देन ओनली विल बी एबल टू गेट दिस, राइट? थोड़ा सा वहां तक पहुंचने में काम करेगा हमारे लिए। जो हम बाइनरी या नंबर के बेस होते हैं ना, जैसे लाइक सबसे अच्छा बेस का नंबर क्या होता है, मतलब अगर नंबर को निकाला जाता तो और 7। 7। वाई 7? सर 7 से जो भी होगा आंसर 7 से। हाँ, वाई सर 7? ज्यादा एनीवन एल्स? सो डेसिमल ही बेस्ट है। डेसिमल बेस है। दे यूज्ड Why? सेट उसमें कंप्यूटर लास्ट से में जब बेस 2 उसको यूज करते पावर्स हैं। में करते तो सब पैटर्न में 0 0 0 ही आता है।
नॉट बैड, बट अगर मैं बेस 2 decimal तो कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, पर बैबिलोनियन 6 बेस 60 यूज करते थे। बेस 60 यूज करते थे, नॉट बैड। वाई बेस 60 क्यों यूज करते थे? आई थिंक मल्टीपल्स का ही कुछ था, वैसी कुछ था। अब बेस 60 में ना बहुत सारे मल्टीपल्स मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से आ जाते। जैसे 10 के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, 10 के साथ 1/3 करना इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। 10 के साथ में 1/3 करना इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, वो थोड़ा सा हमारे लिए गड़बड़ चला जाता। वैसे मानने को जो भी बोला जाए, हम लोग जो बेस होता है, या तो वो 5 में या 10 में या 20 में, इन तीन पर मैक्सिमम जो एक एंसेंट नंबर्स बने हुए हैं, ये तीन पर बने हैं। इसका रीजन तो आई होप सब लोग समझते हैं हम लोग क्या होगा, वाई, क्या रीजन रहा होगा कि 5, 10, 20 बेस पर। आप अगर रीड करोगे ना एंसेंट मैथमेटिक्स, तो एंसेंट मैथमेटिक्स में आपको सबसे अधिक जो मिलेगा, या तो बेस 5 मिलेगा, या बेस 10 मिलेगा, या बेस 20 मिलेगा। वाई? आमने सामने आजू बाजू केवल दिमाग लगाओ, सामने है। 10 ये 10 मिलेगा। वेरी गुड। 5 इज दिस, 10 इज दिस, एंड दोस भी मिला लिया 20, राइट। लेकिन बेस्ट जो माना जाता है, सभी बेस्ट है, उसमें कोई ये नहीं रहनी चाहिए, बट माया सिविलाइजेशन में इट वाज 12 पर बेस जाते थे एंड 60 पर बेस जाते थे, क्योंकि उस समय डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना आसान होता था कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग। अगर 12 की मैं बात करूं, 12 और प्यारा नंबर होता है। जो मैथमेटिशियन अभी के हैं, मॉडर्न मैथमेटिशियन है, उनका मानना है कि बेस अगर 12 होता तो अधिक अच्छा रहता। बेस 12 में भी, राजीत, बेस 12 में भी बेटा 0 आएगा, राइट। देन विल राइट द नंबर ना, जब यू राइट द नंबर ना, अगर बेस 12 के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो आई नॉट गो फॉर बेस, मतलब आई नॉट राइट 12 इन दैट, सर राइट। तो फिर हमें 10, 11 और 12 के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता, तब 0 वो to बेस्ट 11 होता। लिखना होगा बस। लेकिन अभी हम बेस 12 नंबर्स को भी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से ही करते हैं। यस, यस। इसको नाम दिया था उन्होंने डेक, राइट। इसके नाम दिया था एल। उसके बाद ये 10 आ गया, ये 12 बेस। देन राइट, अब 20 मेरे को, दिस इज द बेस सिस्टम। वो दो नंबर हमने एक्सटेंड कर दिए, दो नया नाम दे दिया, राइट। दैट्स कॉल्ड डेक एंड एल, राइट। एंड ये जो जो 12 के लिए होता है, इसको नाम दिया गया था डो, राइट। दिस वो द बेस ऑफ द नंबर, राइट। तो बहुत अलग अलग तरीके से बेस बनते हैं। एंड सबसे मजेदार बात क्या है कि IUQM में करीब करीब हर एक सेकंड ईयर में क्वेश्चन आता है, राइट। RMO के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है इस पर बेस होते हैं। तो हमारे लिए दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर हमारे लिए काम करना मस्ट है। सो 100% वी हैव टू डू समथिंग ऑन दिस, राइट। एंड कुछ अच्छे एफर्ट हमारे लगने चाहिए। ओके, राइट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। इसका टेस्ट मैं इस संडे इसी पर टेस्ट ले रहा हूं, जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर किया है, मैं शेयर कर दूंगा। कुछ लोगों ने जो लेक्चर नहीं किया था, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड ऑल, देन हम लोग एक अच्छा सा टेस्टिंग रखते हैं। यस ओके, बाय बाय एवरीवन। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज बाय वेट। सर। डाउट है। डाउट है? हाँ बेटा। ऐसे आपने सर जो पेपर भेजा था पर्पल कॉमेट का,